مجلس داس کا کار فرمائیں گے استاد محترم سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب، اور ان کے بعد جاتے ہیں جناب کامران عباس علی صاحب سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب. خوشنودی ہے محمد والا محمد اللہ صلوات. رئیس کربلا اشرف فرانی اسیران کربلا دستگاہ رئیس کربلا کی آج دوسری مجلس سے میرا خطاب ہے. اپنے انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق عظمت انسان اور امام پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے پیسہ میں نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو مانے گفتگو ڈال دی ہے، جس میں بے مثل خالق نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ انسانیت کیا ہے. الحمدللہ پہلے جملے پہ عمل بچے قبلہ کل چونکہ پہلی مجلس تھی تو میں اہمیت کی آزاداری پہ گفتگو کرتا رہا. جان کے مطابق میں نے عرض کیا آج اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے عظمت انسان اس لیے بتائی ہے تاکہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے. اگلی آیت میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے انسان اپنے اوپر غور کر. تو اتنا عظیم ہے تو تیرا ایمان کیسا ہونا چاہیے. تو اتنا عظیم ہے تو تیرا ایمان کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ انسان میں اور ایمان میں بڑا واضح فرق ہے. جو ہدایت لے اسے انسان کہا جاتا ہے، جو ہدایت دے اسے ایمان کہا جاتا ہے. میرا سوال ہے میرا ایڈا سنا سنتے ہو. الحمدللہ جو ذکر سننے آئے وہ تو سارے تشریف فرما ہو. باقی میں ان باتوں سے معذرہ ہوں. اللہ نے انسان کو عظمت بیان فرمائی ہے کہ ذرا اپنے اوپر تو غور کر. تو اتنا عظیم ہے. جملہ پہلا آج کی تقریر کا اللہ ہمیں سمجھا رہے کہ اپنے اوپر غور کر. تو شامل مخلوقات نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے. تو صرف شامل مخلوقات نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے. میں نے پیسہ اس موضوع کو اس لیے یہاں پہ عشرے میں بیان کیا ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دے. یہ نہیں کہا شیعہ کو، ابتدائی مجلس ہے میرے ساتھ رہنا. یہ نہیں کہا بھائی شیعہ کو، اہل سنت کو، اہل حدیث کو، بلکہ کیا فرمایا انسان کو بیدار کو ہو لینے دے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. اور مولا متقیان حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر غور کر. یہ جب تیرا وجود ہے نا یہ کہ جہان اکبر چھپا کے بیٹھے. یعنی جو قرآن سنتے ہو اس میں پورا جہان اکبر ہے، یعنی پوری کائنات تیرے وجود میں تو اتنا عظیم ہے. تو ایک حدیث قدسی پڑھتا ہوں، آواز خالق آتی ہے اے انسان غور کر کہ تو اتنا عظیم ہے. میں نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اے انسان تیری ذات کے لیے تجھے بنایا ہے، اپنی ذات کے لیے. اللہ اکبر. الحمدللہ میں انسانوں کو بتا رہا ہوں کہ انسانیت کیا ہے. تو بندے اسی انداز سے مجھے سنیں متوجہ ہیں. جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی اے انسان غور کر کہ تو اتنا عظیم ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا. میرے ساتھ رہنا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا. مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے آتا
मगर इसमें पड़ती है, मेहनत ज्यादा। इंसान इतना अजीम है, इतना अजीम है कि अल्लाह ने फरमाया कि जिस चीजों की इंसान को जरूरत होनी थी, अल्लाह ने वो चीजें पहले पैदा की। साथ देखिएगा, वो चीजें पहले चट्टान पैदा की इंसान की, बाद में बनाया। इंसान को पीने के लिए पानी की जरूरत थी, अल्लाह ने पानी को पहले खल्क किया, इंसान को बाद में खल्क किया। इंसान को रहने के लिए जमीन की जरूरत थी, अल्लाह ने जमीन का फर्श पहले बिछाया, इंसान को बाद में खल्क किया। इंसान को ये अशा में आना चाहिए था, अल्लाह ने आसमान पहले खल्क किया। मेरे साथ दीजिएगा, ये शामियाना पहले खल्क किया, इंसान को बाद में खल्क किया। फिर इंसान को इस शामियाने को सजाने के लिए एक चांद की जरूरत थी, अल्लाह अकबर। सितारों की जरूरत थी, अल्लाह ने सितारे और चांद पहले खल्क किए, इंसान बाद में खल्क किया। फिर इसे रोशनी के लिए सूरज की जरूरत थी। अब जो चाहूंगा मैं, सूरज की जरूरत थी, अल्लाह ने सूरज पहले खल्क किया, इंसान बाद में खल्क किया। और यहाँ तक जो पहला इंसान खल्क हुआ, उसका नाम आदम रखा गया। किसे सौखिया करके किसे भी नहीं समझाना, जो है सबका, यानी जो पहला इंसान खल्क हुआ वो उसका नाम आदम रखा गया। उसका नाम वजह है, उसका नाम आदम रखा गया। तो फिर एक चीज हमें समझ आ गई, पहला नुक्ता आज की तकरीर का, हमें एक बात ये समझ आई कि जो पहले खल्क हो उसे जरूरत कहते हैं, जो बाद में खल्क हो उसे जरूरतमंद कहते हैं। ये उर्दू बोल सकते हैं, जो पहले खल्क हो वो जरूरत, जो बाद में खल्क हो वो जरूरतमंद। आदम की जो चीजें जरूरत थी वो पहले खल्क हुई, आदम है जरूरतमंद। याद तक जो आदम से पहले वो आदम की जरूरत, जो कायनात से पहले वो कायनात की जरूरत है। अल्लाह अकबर, वो कायनात की जरूरत है। जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की है, यही वजह है कि मेरे मासूम से किसी ने पूछा, मौला आप कब खल्क हुए? मौला जुबान नहीं थी, मौला शादी की जुबान से पढ़ देते, मौला आप कब खल्क हुए? मुस्कुराते फरमाते हैं, कब बनता है, कब न था हम थे। ये बोल सकते हो, कब न था, मिलता मतलब से रहेगा, कब न था हम थे। देखे कहते मौला आप किस वक्त से हैं? जब कहा ना आप किस वक्त से हैं, शादी मुस्कुराते फरमाते, वक्त बनता है सूरज और चांद की गर्दश से। नहीं ना हालात ना गया, सूरज बन एक वक्त बनता है सूरज और चांद की गर्दश से। सूरज न था हम थे, चांद न था हम थे, जमीन न थी हम थे, लो न था हम थे, कुछ भी नहीं था हम थे। जब कहा ना कुछ भी नहीं था हम थे, शायर मुस्कुरा के कहते मौला जब कुछ भी नहीं था आप थे, आप थे कहां पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला जब कुछ भी नहीं था आप थे कहां पे? सादिक मुस्कुरा के कहते जहां वो था। नहीं बोल सकते, बोल सकते, जहां वो था वही हम थे। कहते फिर मौला आपका उससे क्या ताल्लुक? जब कहा ना आपका उससे, क्या कहते मौला जब कुछ भी नहीं था आप थे कहां पे? सादिक मुस्कुरा के फरमाते जहां वो था। हम पढ़ी आवाज मेरे नाल लगेगी, जहां वो था वही हम थे। कहते मौला फिर आपका उससे क्या रिश्ता है? जब कहा ना आपका उससे क्या रिश्ता है? सादिक मुस्कुरा कर फरमाते शम्स, हमारा उससे ताल्लुक वही है जो शुआ का सूरज से होता है। मौला आपने शुआ की मिसाल क्यों दी? मौला आपने सूरज की मिसाल क्यों दी? सादिक फरमाएंगे ताकि तेरे जहन में रहे सूरज का फैज शुआ के बगैर नहीं होता, अल्लाह का फैज हमारे बगैर नहीं होता।
कुछ भी नहीं था, हम थे। फिर कहने का हक रखता हूं, आले मोहम्मद जरूरतमंद नहीं, कायनात की जरूरत है। सानू सूरज की जरूरत है कि नहीं? हल्का नहीं पे बोल रहा, हमें सूरज की जरूरत। इंसाफ ना दसो, सूरज नूं साडी लोड़ है कि सानू सूरज की लोड़ है? बोलो मेरे नाल, सूरज को तो हमारी जरूरत नहीं। और कुरान की कसम हजरत अली के जुमले की समझ आई है कि जब बंदों ने आके कहा ना, याली खिलाफत कबूल कर, और बंदे ना बोले ना, एक तो तकलीफ है। जब कहा ना याली खिलाफत कबूल कर, अली देख के कहते हैं तुम सारे मेरे गिर्द जमा हो जाओ, मेरी इज्जत में इजाफा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम सारे मेरे गिर्द जमा हो जाओ, मेरी इज्जत में इजाफा नहीं। तुम सारे मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत में कमी कोई नहीं। और याद रख, पूरी दुनिया अली को माने, अली का बढ़ता कुछ नहीं, और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता ही कुछ नहीं। मेरे मदीना बात का यार, मालिक इज्जतों में इजाफा करें, मालिक सलामती अता करें। मतवज्जे हैं सबका। अल्लाह ने अजमत इंसान के लिए, मौजू मेरा पसंद आ रहा है, अल्लाह ने अजमत इंसान के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो पहले खल्क की, इंसान बाद में खल्क किया। और याद रखो, अल्लाह की तख्लीक के शाहकार का नाम है इंसान। जुमला मैंने कहा, जिम्मेदार मैं अपने बच्चों को। आम हर बंदे से पूछो इंसान कितनी चीजों का मुरक्कब है, तो कहते हैं कि अनासरे अरबा का, 4 चीजों का मुरक्कब है, आग, हवा, पानी और, बोलो जिन्हें पता है, आग, हवा, पानी और मट्टी, यानी 4 चीजों से मिलकर बना है इंसान। और एडा स्वादी जुमला करना, मैं चेक कर रहा हूं कौन मजमा, किसी के इंतजार में कौन जिक्र सुन रहे। याद रख, जो 4 चीजों से बने उसे इंसान कहते हैं, जो अल्लाह के नूर से बने उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 4 चीजों से इंसान बने, आग, हवा, पानी और मट्टी। आग, हवा, पानी और, ये चारों चीजें नायाब नहीं, ये चारों चीजों के बड़ी कोई नायाब चीज नहीं है। पानी भी मिल सकती, मिट्टी भी मिल सकती, आग भी। खुदा की कसम, असा 2-3 खतीबां के सैकटरियां नूं मना कीता, नहीं तो ये साडा बयान ही करते सन शोला बयान। मौलवी मुंह चोटा कटते जो है वो मैं खुदा की कसम, असा 3-4 खतीबा मना किया स्टेज सैकटरी, और वास्ता जे इन्हां गल्लां तो मना करो। पाबंदी वाली लिस्ट आउंदा शोला बयान, ये बंदा मुंह चो आगे कटदा है। हालांकि हम शोला बयान नहीं है, हम तो शीरी बयान है। ये मेरी तारीफ कर सकते हो, मैंने आज तक शोले को निकाला ही नहीं। कि बोला आग भी, पानी भी, मट्टी भी और हवा भी, ये चारों चीजें जो हैं ये मुयस्सर आ सकती हैं। तो लो बड़े से बड़ा कारीगर उसे चारों चीजें दे के कह इंसान बना दे। एक पिछले बंदे जो मेरे साथ नहीं है, उन्हें चारों चीजें दे के भाई अगर भी कहा जाए कोई साहब के इंसान बना दे, नहीं बना सकता। चुप कर गए। मिस्त्री को बंदे अपनी मर्जी का नक्शा देते, उन्होंने अपनी मर्जी का मटीरियल पर दे के आने बना मकान। ये मेरे इलाके में मैं आपको फ्रांस का नक्शा दिखा सकता हूँ, ये मेरे फ्रांस के मकान में। अब नेट का दौर है, वहां से तस्वीर ली है, यहां बन गए जो है सकता। यानी जैसे जैसे यानी जैसा आर्किटेक्चर को आपने दिए,
जैसा आर्किटेक्चर को आपने दिए उसने बना दिए। दर्जी ਨੂੰ कपड़ा दे मास्टर जी, दर्जी ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੂਟ ਆਖੀਏ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। बोलो मेरे नाम, जिम्मे ਦਾ आखिए वो सी देता है। मतलब है ना, जैसा कहा जाए। तो बड़े से बड़ा कारीगर दिखा जिसे ये चारों चीजें दे और कहें इंसान बना दे। चारे क्षमा दिए, क्या किए? इंसान बना दे। बना सकते? मैं थोड़ी अजमत का पढ़ना, चारों चीजें दे कहीं इंसान बना दे, बना सकते? नहीं। जो बनेगा वो बुद्ध कहलाएगा। और देखा लगा कितने मियाददार होंगे। याद रख, जो इंसान के मुकाबले में बंदा बनाए उसे बुद्ध कहते हैं, और जिसे बंदे मिलके इमाम बना दे उसे क्या कहा जाएगा? अल्लाह हमें अकल दे रहा है, अल्लाह हमें समझा रहा है कि तुम सारे मिलके भी अगर अपने जैसा इंसान नहीं बना सकते तो बंदे मिलके इमाम कैसे बना लोगे? अगर तुम इंसान नहीं बना सकते, मुझे है सकता इन चार अनासर से मिलके, आग भी, पानी भी, मट्टी भी, हवा भी, ये चार चीजें हैं ना, आग, हवा, पानी और मट्टी। इन चारों चीजों की मौजूदगी में जो कमाल चीज है उसे कहा जाता है कुदरत इलाही। मेरा बेचे कमाल है ना, उस कमाल का नाम है कुदरत इलाही। यानी जो अल्लाह की कुदरत लेके चार चीजों से बने। जो पहला इंसान बना उसका नाम आदम रखा गया। मैं नतीजे पे आ गया। जो पहला इंसान बना उसका नाम, बोलो यार रहमत करो, उसका नाम आदम रखा गया। एक आदम बने, एक शैतान के बने हैं। असी के सारे आदमियां एक शैतान के बने, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो कुरान कहते हैं शैतान उस वक्त बना जब उसने आदम के सजदे का इनकार किया। जब उसने बाबा जी आदम के सजदे का इनकार किया तो शैतान हुआ। अल्लाह ने कहा, ऐ इब्लीस, तुझे किसने मना किया? तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किए? अम कुंत मिनल आलीन, या के तू भी आलीन में से है। जिन्होंने अल्लाह जुबान देती है, या के तू भी आलीन में से है। आयत का जाहिरी तर्जुमा बता रहे कि आदम से पहले भी कुछ आलीन थे और उन पे वाजिब नहीं था कि वो आदम का सजदा करे। अगर ਤੁਹਾਡਾ स्वाद होवे, अगर लुत्फ रखो तो मैं आलीन बताना दूं। पिछला मजमा में अर्ज करूं कि आलीन क्या है? अल्लाह गवाह है। जब हमें अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, वहां वाहिद जमा पढ़ाए जाते हैं तो समझ आ जाती है आलीन जमा है अली की। और अली के बाबा तो बोल रहे ना, आलीन जमा है अली की, आलीन जमा है अली की। अब इस घराने का कोई तारुफ करवाए तो करवाए का है किबला ये सारे अर्श पे हो तो अली होते हैं, जमीन पे आए तो सारे मोहम्मद हो जाते हैं। अर्श पे हो तो सारे अली, ऐ स्वाद है। अर्श पे हो तो सारे अली, जमीन पे आए तो सारे मोहम्मद। अल्लाह ने कहा तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किए? अम कुंत मिनल आलीन, या कि तू आलीन में से है। इब्लीस ने कहा मैं इसे सजदा करूं, मुझे तूने आग से बनाया है।
जे अगर नवा नुकता होवे सैयद अगे सुनिया होवे मिंबर पे कर रहा हूं, कोई दाद नहीं कोई दुआ नहीं, अगर मेरी मेहनत नजर आए फिर हाथ रखने वालों को तो हमने कबूल ही नहीं किया। मैं अपना हाथ मिंबर से चाह रहा हूं, याद रख इब्लीस ने क्या कहा कि तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है। हालांकि आदम तो 4 चीजों से था। नुक्ता नमा लगा, आदम तो 4 चीजों से था, आग हवा पानी और मिट्टी। इब्लीस ने 3 को कबूल कर लिया। मैंने जिन्होंने अल्लाह से रहमत दी लिया, 3 को कबूल कर गया, मिट्टी का इनकार किया। अल्लाह ने कहा ये इब्लीस है, ये इब्लीस है, ये इब्लीस है, ये इब्लीस है, ताकि कायनात को पता चले जो तुराब का मुनकर हो वो इब्लीस होता है, जो अबू तुराब का मुनकर हो वो अबू इब्लीस होता है। मालिक इज्जत को मैं दफा करे। हालांकि उसने ये क्या सराई की थी, वो कहा मैं अफजल हूं, मैं आग से बना हूं, जो है मैं अफजल हूं, मैं आग से बना, ये मुझसे मफजूल है, ये मिट्टी से बना है। ये भी अजीब लुत्फ है कि याद रखो मिट्टी अमीन है, आग खाइन है। चुप करके यार आप चेक करके देखो, आग में चीज डालो जल जाएगी, आग में चीज डालो जल जाएगी, लेकिन मिट्टी में एक दाना डालो 70 करके देता है। कम से कम जटाना दे हाथ बनता था ना इस गल से दाद दे, यानी एक दाना शादी मिट्टी में बोए शजर बना देते। और जो है सकता ये इब्लीस जो है ये लानती हो गया, इनकार कर दिया आदम के सजदे का। वजह क्या थी? इब्लीस ने आदम देखे, वो नूर नहीं देखा जो आदम की पेशानी में था। मैं दूसरा नुकता करना यार, इसने आदम का जाहिर देखे, वो नूर नहीं देखा जो आदम की पेशानी में था। हमने इब्लीस की खसरत दूसरी ये समझ ली, जो जाहिर देखे निस्बत ना देखे वही तो इब्लीस होता है, जो सिर्फ काला कपड़ा देखे अलम की निस्बत ना देखे जमाने में वही तो इब्लीस होता है। मालिक इज्जत को मैं दफा करेगा। आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अल्लाह ने सजदा करवाया, अब जो है अल्लाह ने सजदा करवाया, और सजदा भी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने चाहे एक लम्हे का सजदे, जी मेरे आप मतवज्जे रहो, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह ने चाहे एक लम्हे का करवाया, ना इससे पहले आदम को सजदे ना इसके बाद है, वो एक लम्हे का सजदे, एक सजदे, एक लम्हे का सजदे। लेकिन चाहे एक लम्हे का है, आदम मस्जूद मलाइका तो बना है, आदम मस्जूद मलाइका तो बने, आदम मस्जूद मलाइका तो बने, ताकि इंसान को अपनी कदर का पता चले। अब जो नहीं फरमाई साड़ी एक खसरत है कि असी को बंदा चंगा देखिए ना तो माने ये फरिश्ते और छाड़ी यार वो क्या बात है, वो इंसान नहीं होते फरिश्ते, वो तो फरिश्ते। और मैं आज मिंबर से कह रहा हूं ये तौहीन है। अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों के सामने नहीं झुकाया, बल्कि फरिश्तों को इंसान के सामने झुकाया है। ये कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी अजमत है। चलो मैं एक और लफ्ज कह के यहीं पे आपको सलाम करूं। मतवजे हैं और लाइव प्रोग्राम में साड़ी भी मजबूरी है, जिन्हों को ना जाओ उन्होंने का भी कोई हाल नहीं। लाइव प्रोग्राम में मैं माजरत कर रहा हूँ, कल एक
मजलिस में नहीं जा सका, कुछ यहाँ लेट हुआ, कुछ आगे मेरी यहाँ से निकल कर मुझे 2 अशरों पे हाजिरियाँ देनी होती हैं, मतलब लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं वादा खिलाफियाँ ना करूँ, वहाँ पहुँच जाऊँ, मतलब जी है। तो अगर आप दुआ फरमाएं तो मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि भला 3 चीज़ें हैं, एक है साजिद, एक है मस्जूद, एक है मस्जिद। जो है साजिद, मस्जूद और मस्जिद। मस्जिद के लिए कि भला ये मेहराब का होना जरूरी नहीं, जो है ऊपर गुंबद का होना जरूरी नहीं, मस्जिद के लिए साजिद का होना जरूरी है। नुक्ते अजीब मोड़ पे मैं, मस्जिद के लिए किसी सजदा करने वाले का होना जरूरी है। चलो एक जुमला मेरे जहन में आ गया। एक बंदे ने चोरी की है, जब चोरी की तो मेरे इन्होंने कहा कि इसका हाथ कहां से काटा जाए। किसी मुफ्ती ने कहा यहां से, किसी ने कहा कोहनी से। इनकी तारीख में नजर है, जब इनकी समझ में बात ना आई, मेरा अल्लाह गवाह है, ये यदुल्लाह के बेटे मोहम्मद बाकर की दहलीज में गए। जब ये मौला बाकर की दहलीज में गए, मौला से पूछा कि मौला हाथ कहां से काटना चाहिए। जब कहा ना हाथ कहां से काटना चाहिए, मेरे मौला बाकर फरमाते उंगलियों से काटो। ये गल सुन लो, जब कहा ना कि उंगलियों से काटो, उन्होंने कहा मौला इसकी दलील क्या है। मौला फरमाते इन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि सजदे अल्लाह के लिए है, मसाजिद अल्लाह के लिए है। तो मासूम फरमाते अज़ाए सजदा भी अल्लाह के लिए है। यानी ये जो 7 अज़ा है, ये 7 अज़ा है, ये अल्लाह के लिए। दोनों हाथों की हथेलियां, चलो ऐसे बहाने का कोई गल तो समझ लो। दोनों हाथों की हथेलियां, ये माथा है, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पांव के अंगूठों के ऊपर वाले कोड़े, इन्हें अज़ाए सजदा कहा जाता है। बाकिर फरमाते हैं कि इसे सजा दो, सजदे से महरूम न करो। ऐसा बात नहीं, ये इस मुश्किल करके नहीं बोले, इसे सजा दो, सजदे से महरूम न करो। एक बाकिर के कहने पे हाथ कटा, एक का हाथ अली ने खुद काटा। अगर तुम मेरे नेड़े हो, ये भी स्वादी बात है। नाम है अबू कबाब, चोरी कर ली, आके अली के सामने आके कहता है यार सजा दे, चोरी की है। और दुनिया समझे अली की अदालत को। किबला जहां जुर्म सामने आके मुजरिम अपना जुर्म कबूल करे, ऐसे आदल को अली कहा जाता है। उसने कहा मौला चोरी की है। अली फरमाते कोई मजबूरी होगी, नहीं तो स्वाद नहीं ले आया। जब साहब मौला अली फरमाते कोई मजबूरी होगी। दुनिया की अदालतें और अली में फर्क है। दुनिया जुर्म साबित करती है, अली पे जुर्म साबित कर रहा है। अब मौला मजबूरी भी कोई नहीं, गफलत में चोरी हुई है और जड़े जागते हो गए। जब काना गफलत में चोरी हुई है, अली ने उंगलियां काट दी। ऐसे आदम को अली कहा जाता। अली ने जब उंगलियां काटी, तवज्जो है सबका, अली ने उंगलियां काटी। और ऐ सवाल है साढ़े मिजाज इन्होंने बंदियां ने मिजाज भी फर्क। बंदा कसूरवार होवे तो जज फैसला कर दे, कामी बंदे जज में गलत आते। हम इस माहौल की गल समझ ना आई तो फिर कभी भी नहीं होनी। अल्लाह की कसम अजकल जो हालात जजा के होए जो है, जो राजा साहब आप तो इंटरनेशनल हालात से वाकिफ है कि अगर मेरी मर्जी का फैसला है तो जज कबूल है, अगर मेरी मर्जी का फैसला नहीं जज कबूल नहीं। लेकिन कमाल है अली और इको जी दाद आवे तो मैंने स्वाद आए कि भला कमाल है अली। उंगलियां कटी हैं, उंगलियां दूसरे हाथ
बाहर निकलते कहते या अली तेरे बच्चे जिए, या अली तेरे बच्चे जिए, या अली तेरे बच्चे जिए। अगला बंदा देख के कहता है तू अजीब बंदा है, अली ने तेरी उंगलियां काटी हैं, तू अली के फदाइल पढ़ रहे, अली ने तेरी उंगलियां काटी है, तू अली के फदाइल पढ़ रहे। देख के कहते हैं तुझे कटी उंगलियां नजर आती है, ये नजर नहीं आ रहा अली ने उंगलियां काट के मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर। अली ने उंगलियां काट के, अली ने उंगलियां काट के मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। मदीनातुल माजिद आगा अबू हाशिम बहरानी, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं कि बोला मेरे अली को इतला दी गई, या अली जिसकी उंगलियां काटी थी वो फजाइल पढ़ रहे, जिसकी उंगलियां काटी थी फजाइल पढ़ रहे। अली ने नौकर भेज के कहा उसे बुलाओ। मेरे अली ने जब उसे वापस बुलाया ना, वो वापस पलटा। अली फरमाते क्या कह रहे? कहते मौला अली फरमाते मेरे फजाइल पढ़ रहे। कहते मौला फजाइल नहीं हक बयान कर रहा हूं, मौला फजाइल नहीं हक बयान कर रहा हूं, क्योंकि जन्नत दोज़ख तो तू ही तकसीम करने वाला है। जन्नत दोज़ख को मौला हम तकसीम करने वाले। मेरे अली फरमाते हक बयान कर रहे। कहते मौला जी हक कह रहा हूं। मौला अली फरमाते अपनी उंगलियां हाथ से लगा, जिन्होंने सांप पे टोरते हैं। जब कहा ना उंगलियां हाथ पे लगा, इसने उंगलियां हाथ पे रखी। अली फरमाते चेक कर, मिजाज है मेरे वजीराबाद का। जब कहा ना चेक कर, उसने कहा मौला हाथ ठीक है। जब कहा ना मौला हाथ ठीक है, अली कहते पलट जा। जब अली ने कहा ना पलट जा, एक मोतरेस ने कहा अली अगर उंगलियां जोड़नी थी फिर काटी क्यों, अगर काटनी थी फिर जोड़ी क्यों? अली फरमाते उसको चुप कर, उंगलियां काटना मेरी अदालत का तकाजा है, उंगलियां जोड़ना मेरी मोहब्बत का तकाजा। मालिक इज्जतों में रफा करेगा। ऐसा इमाम होना चाहिए, ऐसा अखजे है सरकार बंदे साढ़े च सुन्नत च फर्क है। एक गल दा वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत चेहरे मुझे जानते, आप सारे मेरे वाकिफ हो, मैं आपका वाकिफ हूं। मैंने मेंबर से आज तक नहीं कहा शिया सुन्नी दोस्त, क्योंकि जो सफ़े अज़ाब पे आ जाए वो ना शिया होता है वो ना अहले सुन्नत होता है, बल्कि वो हुसैनी होता है। बड़ी देर पहले जब साहब किबला मैंने शिया और सुन्नी की तारीफ की थी, बंदों ने मैंने बड़ी, ये जुमला मेरा बड़ा वायरल हुआ, बड़ी मुझे पूरी दुनिया में मुझे इज्जत मिली। आज मैं अर्ज ना करूं कि शिया किसे कहा जाता, अगर तुम मेरा साथ दो, शिया किसे कहा जाता है, जब साहब सुन्नी किसे कहा जाता है? याद रख, जो नबी की सुन्नत पे अमल करे वो अहले सुन्नत है, जो अली से मोहब्बत रखे। एक तारीफ है माशरे में, जो हजरत अली से मोहब्बत रखे वो शिया, जो नबी की सीरत पे अमल करे सुन्नी। इससे बड़ा नया कोई नहीं। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, नबी की असमत की कसम है, अली की इमामत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, हसन की इमामत की कसम, हुसैन की इमामत की कसम। इतनी कस्में उठाने के बाद मैं पापा के तोहल कह रहा हूं, अगर शिया का मतलब अली से मोहब्बत करने वाला है तो नबी से बड़ा शिया कोई नहीं। यानी इतने कैमरों में मैं कह रहा हूं, अली से मोहब्बत शिय्यत की अलामत है तो नबी से बड़ा शिया कोई नहीं। अगर नबी की सीरत पे अमल करने का नाम अहले सुन्नत है तो कुरान की इज्जत की कसम है, अली से बड़ा अहले सुन्नत ही कोई नहीं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक जाए
یاد رکھو شیعہ اور سنی میں دو عام میں ایک فرق ہے. ہم اپنے نماز پڑھانے والے کو پیش نماز کہتے ہیں. جو ہے سب کیا کہتے ہیں؟ پیش نماز. برادران اہل سنت کہتے ہیں پیش امام. یہ میرا موضوع ہے انسان تے امام. جو ہے انسان تے امام، یہ میرا موضوع ہے. بلا اگر ہمیں مسجد کے امام کی سمجھ آئے گی تو حق کے امام کی بھی سمجھ آئے گی. ذرا توجہ فرماؤ، ہے بڑی محنت والی گل ہے، میری جان لگی. مسجد میں ایک جگہ ہے جس کو محراب کہا جاتا ہے. ایک تقریباً ہر مسجد ہے محراب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پیش نماز جو ہے وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، جماعت کرواتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بول بولو محراب. انہوں کیا کریں بول بولو میں کراؤں جماعت کراؤں لگا. اسے کہا جاتا ہے محراب. محراب کو محراب لفظ جو عربی تھوڑی سی بھی سمجھتے ہیں، محراب لفظ حرب سے نکلے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. نہیں آپ نے لطف بھی نہیں دیا. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. تو جہاں جنگ ہو اسے محراب کہا جاتا ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ وہاں مولوی جنگ کرتا ہے؟ یہ دسن کا کام ہے میرے بزرگوں دوستو. یہ وہاں مولوی جنگ نہیں کرتا. ایسے نہیں لکھا جاتا ہے لولا لنگڑا امام نہیں ہو سکتا. جو ہے لکھا جاتا ہے جو لولا لنگڑا نہیں ہوگا. کیوں؟ وہاں جنگ کرنی ہے اور جنگ بھی نمازیوں سے نہیں. قبلہ حسین بخش جارہ نے جو تفسیر میں لکھے، تفسیر انوار النجف کا حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آقا جی فرماتے محراب اس لیے ہوتا ہے کہ پیش نماز جنگ کرتا ہے وسوسوں سے. زحمت کرو یار. وہ چونکہ آگے کھڑا ہوتا ہے وہ وسوسوں سے جنگ کرتے ہیں اور وسوسے نظر نہیں آتے. میں نتیجے کے کارن اہم دیے وسوسے نظر نہیں آتے. جو وسوسوں سے جنگ کرے اسے پیش نماز کہتے ہیں. جو جنات سے جنگ کرے اسے حق کا امام کہا جاتا ہے. متوجہ ہے؟ میں نے کہا کہ بلا ایک جنگ ہے. الحمدللہ کافی بزرگ سے ہیں، انہیں بہت کاٹ عمر تو جانا ہے. اس کا نام ہے پیر علم. یہ میرے بزرگاں سنی ہے. پیر علم جنگ ہے. ایک جنگ سے میرے نبی واپس پڑے، پیاس بھی تھی. میرے نبی نے 2-3 بندوں کو کہا کہ یہاں کنواں ہے. نہیں ذرا زحمت کرو میرے قریب رہو. یہاں کنویں اور میرے نبی فرماتے اس کنویں کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو پلائے؟ سارے گئے سن. توجہ ہے سر. اور میری مجبوری ہے نہ ہم آتے ہیں لے نہیں سکتا. جبلا استاد بزرگوار کاری جانما منانے ہوتے سن ایسے مقدس نام لین کی ضرورت ہی کی ہے جنہ کا اتنے نام لیا جیل ہو جاتی ہے. قرآن کی قسم ہے میرے تجربے جن تھی اگے نعرے مارتے ہو پیچھے کوئی نہیں آؤں. میں باوجو ممبر جن بندے جڑے وہ میرے بہت لگتے گئے. اللہ کی قسم جیل پیچھے الحمدللہ، لیکن میں ایسے مقدس نام ہی نہیں جو ہے سکتا. اس لیے کل میں اپنی کی تھی یاد رکھوں میں ایسے مقدس نام بالکل نہیں لیتا. پر آج 2-3 بندوں کو میرے نبی نے بھیجا
वापस पढ़ के, जब वो वापस पढ़ के सरकार फरमाते हैं अब्दुल्ला जा, बात आपके दिल तक उतारना चाहो, तो कहा ना अब्दुल्ला जा मुझे पानी पिला। अब्दुल्ला गया, जिन बाहर आ गया। समझो है, जिन बाहर आ गया। मैं भी इमाम हुसैन का दस करा, जरा अज ना बोलिया रात जिन ना आना मिलिया। समझो है, मानक पढ़िया इस तरह रखे, मतलब जी है सरकार। वो जिन बाहर आ गया, उस अब्दुल्ला अंदर पिंजर बाहर। उस जिन ने अब्दुल्ला अंदर, पूरा पिंजर बाहर चुके। हुण सामने ये हालत हो गई, फिर बंदा खलो सकता है? कुछ ऐसे बंदे सन जिन्हों की दौड़ भी बहुत तेज सी, वो जल्दी से वापस पड़ गए। समझो समझो है सरकार। वो बहरहाल तेज नबी के पास आए, आके कहते हैं मौला मौला वो जिन उसने अब्दुल्ला खा लिए, हड्डी वापस कर दिए, मौला वो ना पानी देते। और स्वादी जुमला कितने कलेजे रख के जुमला पड़ा। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते यादी पानी भी ला, अब्दुल्ला का बदल भी, इन दोनों को साथ ले जा, इन्होंने रास्ता देखा है। ड्राइवर काम करने पानी भी ले होने, अब्दुल्ला का बदल भी जो है सकता। ए दो बंदे नाल है, इन्हें राह देखे जो है। अल्लाह गुनाह माफ करे, अल्लाह गुनाह माफ करे, दर्जात बुलंद हो। मलक साजिद है, अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद करे। मैं कुरान की कसमें कभी कंजूसी नहीं की, चाहे जिदा जुमला हो तो ना तो पढ़ ली है। साजिद का नाम नबी आख्या ना ये दो बंदे नाल लै जाओ। उन्हें आख्या सैयद तुहानू सारे राहां दा ते आप पता है, तुसीं औलाद दे मालक हो, तुसीं जमीन के रस्तियां नालों आसमान के रस्ते बेहतर जानते हो, सानू रहन दिओ। कितना स्वादी करके जुमला होंदा। उन्हें आख्या सानू रहन दिओ, तुसीं जाओ। जब आखना इधरों दी हो के गली हंजो करके सीधा ही लंगर है, इसको शादी में कर नहीं सकता। कहा मौला इधर से चले गए। अली फरमाते कहने वाला है मेरा नबी, ऐसा है कहने वाला है मेरा नबी। तुम तो दो टांगे भी रखते हो, तुम तो दो टांगे भी रखते हो। मेरे नबी ने हुक्म दिए अगर तुम पत्थर के होते मैं फिर भी आगे चला के लेके जाता। ये तो दो लतारा करे किबला जल्दी करो। हजरत अली ने किबला डोर फेंका, मेरे पास जिन बाहर आ गया। जब जिन बाहर आया, इधर जिन का आना था तो मलक साजिद आना होता सी, जिन्ना के मुंह हो भी उन्ना बनया लगे। मैनू आप इस गल की समझ नहीं, मैं मजलिस कामयाब पढ़नी है तो उत्तों कामरान होनी है, फिर मजलिस होनी है कामयाब हो कामरान। मतलब है और मैं वीरे अलम पढ़ रहा, मलक का जुमला पढ़ रहा, मलक का जिसले ऐसे डोल सुटिया तो जिन बाहर निकलिया, तो जिन का मुंह हो गया उन्होंने पास। जिन उन्होंने गुस्से देख के आते तो अगे समझ नहीं आई, फिर आ गए। जब आखिर तुम अगे समझ नहीं आई फिर आए, उन्हें आख्या असी नहीं आए उन्होंने अंदर। ये तारीख में मिलता है अली की उन जिन्नात से जंग हुई, अली की उन जिन्नात से जंग हुई। अली ने 12,000 जिन्नात कत्ल किए, 12,000 को कलमा पढ़ा। ऐसे इंसान को इमाम कहा जाता है। गैरतमंद लोगों, आज है 2 मुहर्रम,
मजमून बात पढ़े रहेंगे। कल मैंने सिर्फ चांद रात के मुतालिक एक जुमला मुशायरे का कहा था। आज मेरी ख्वाहिश है मैं 1 या 1.5 मिनट सिर्फ तैयारी का एक जुमला बोलूँ। तैयारी को कभी मामूली मजमून ना समझना। खुदा की कसम तैयारी वो मजमून है जिसने हुसैन की बेटी बूढ़ी की है। गैरतमंद लोगों, वलीद का कासिदा है, मैं जल्दी करूँ। वलीद का कासिदा है, कासिद ने आकर हुसैन को दरबार बुलाया। हुसैन आलिया के पास गए, जो रोने आए हो ना, आलिया के पास गए, देख के कहते हैं आलिया मुझे दरबार बुलाया गया। उन्हें इसको बड़ा मुसाहिब कोई नहीं। जब कहा ना मुझे दरबार बुलाया गया, तारीफ मिलती है। आलिया ने भैया की अबा पकड़ते कहते हैं हुसैन जब से मेरी अम्मा दरबार से खाली आई है, जब से मेरी अम्मा दरबार से खाली आई है, भैया मेरा मुसलमानों से एतबार उठ गया। बला गुजरते हुए ये मंजर देख के पाक गाजी की पाक ज़ौजा ने अपने खैमे आई है, घर आके कहती है मौला आप यहाँ आराम करें। मौला जाना चाहते, आलिया छोड़ नहीं रही। जब कहा ना मौला जाना चाहते, आलिया छोड़ नहीं रही। एक मरतबा गाजी का कदम आए, आबाद छोड़ के कहती है मेरा जामन आ गया। ए हक के रसूल देखा नूरुल्लाह फरमाती है मेरा जामन आ गया। फरमाती है अब्बास पहचान ले, देख ले जैसा दे रही हूँ ना गाजी पे मैं वैसा दे है। अज़ादारों अब्बास ने हाशमी इकट्ठे किए, 18 हाशमी लेके ना जब बड़े हैं ना दरबार की तरफ, हुसैन फरमाते गाजी रुक जाओ, जब मेरी आवाज बुलंद होगी फिर अंदर आ जाना। मेरा इमाम अंदर गया, देख के कहते माविया मारा गया, यजीद तख्त पे आ गए। इमाम ने कल मैं इस तरह हाथ पढ़ा, इमाम फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का यजीद ने बैत का मुतालबा किया। इमाम फरमाते मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। एक बंदा बेगैरत वुजू कर रहा था, उसने इशारा किया आज अकेला है, गर्दन काट लो जिन्होंने मातम करने। जब कहा ना आज अकेले गर्दन काट लो, हुसैन फरमाते औसत जब नजर था और नीली आंखों वाली के बेटे तूने मेरे कत्ल का नाम लिए। जरा फरमाते ये लफ्ज हुसैन की जुबान से थोड़ा ऊंचा हो गया था। गाजी के दोनों हाथ दरवाजे पे आए, दरवाजा जमीन पे गिरा और गाजी दरबार पे आया। और जवान जानते हो अगर जवान को गुस्सा जिस्म कांपता है, हुसैन ने हाथ रख के कहा गाजी ये करबला है और गाजी मेरे नाने का शहर मदीना। अल्लाह मान हौसले हौसले से आखिरी लफ्जों पे जब कहा ना गाजी करबला में मेरे नाने का शहर मदीना, गाजी जंग नहीं करती। आप सुनोगे जुमला, जब काना गाजी जंग नहीं करती, लोग के कहते मौला जंग नहीं करता, मुझे वो बंदा तो दिखा जिसने मेरी जिंदगी में तेरे कत्ल का नाम लिए। जब कहा ना मुझे वो बंदा दिखा और जिसने मेरी जिंदगी में तेरे कत्ल का नाम लिए। इमाम फरमाते गाजी हौसला कर, तारीख कहती है गाजी का जिस्म कांप रहे। अल्लाह जाने हुसैन ने अकबर के कान में कौन सी बात की है। अकबर वापस मुड़ा, गाजी ने बाजू पकड़ के कहा